بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس وقت میں نے خود کو ایک تاریک اور گھنے جنگل میں پایا۔ درختوں کی سرسراہٹ اور اندھیرے میں چھپی ہوئی آنکھیں مجھے ڈرانے لگی تھیں۔ میں جنگل میں بھٹک رہی تھی، راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر طرف سے درختوں کی شاخیں اور کانٹے میرے راستے میں حائل ہو رہے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ کالی لباس والے بھیانک لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے خوفناک اور بدنما تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑا رہی تھی۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں تیز دھار ہتھیار تھے جو انہوں نے ہوا میں بلند کر رکھی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے جیسے کسی نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ میں جتنی تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتی اتنے ہی میرے قدم بھاری ہوتے جاتے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانسیں اکھڑنے لگیں اور آنکھوں میں خوف کی جھلک واضح ہو گئی۔ ان بھیانک لوگوں کے کہکہے اور ان کے قدموں کی آوازیں میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگنے کی آخری کوشش کی مگر میرے جسم نے جواب دے دیا۔ میں زمین پر گر پڑی اور وہ کالے لباس والے بھیانک لوگ میرے قریب آتے گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شفافیت تھی جو میرے دل کو دہلا رہی تھی۔ وہ لوگ میرے قریب آتے گئے اور میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے اتنے خوفناک تھے کہ میں ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور ان کے ہتھیار میرے سامنے چمکنے لگے۔ ان کی شفافیت اور میرے دل میں بیٹھا خوف ایک عجیب سی کہانی بیان کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے مجھے پکڑ لیا اور میرے بالوں کو کھینچتے ہوئے مجھے زمین سے اٹھا لیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز میرے گلے میں دب گئی۔ اس نے اپنے ہتھیار کو میرے چہرے کے قریب لایا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، سوچتے ہوئے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے۔ مگر وہ لمحہ طویل ہوتا گیا اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی شفافیت ابھی تک قائم تھی اور وہ میرے اوپر ہنستے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے زمین پر پٹخ دیا اور میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے کہکہے میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ یہ خواب مجھے بار بار آتا تھا اور ہر بار میں اسی خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ظلم و ستم برداشت کیے مگر یہ خواب میری سب سے بڑی آزمائش تھی۔ میں نے ہر بار اس خواب میں اپنی بے بسی کا سامنا کیا اور ہر بار میں اسی خوف سے جاگتی رہی۔ یہ خواب میرے لیے ایک حقیقت کی مانند تھا جو مجھے ہر رات پریشان کرتا۔ میں نے اس خواب کی حقیقت کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائی مگر یہ میرے دل میں بیٹھا خوف میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا مگر یہ خواب میری سب سے بڑی آزمائش تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا تھا مگر یہ خواب مجھے ہر رات خوف زدہ کر دیتا۔ میری زندگی کے ہر لمحے میں یہ خوف چھایا رہا اور میں نے ہر رات اسی خوف کے سائے میں گزاری۔ یہ خواب میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا اور میں ہر رات اسی خواب کے ساتھ سوئی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میری زندگی شروع سے ہی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور میں یتیم ہو چکی تھی۔ رشتہ داروں نے میری پرورش کی ذمہ داری لی مگر ان کے دلوں میں رحم کا فقدان تھا۔ ان کی ظالم فطرت نے میری زندگی کو ایک جیتا جاگتا عذاب بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار ظلم و ستم برداشت کیا مگر میری بے بسی کا عالم یہ تھا کہ کوئی میری مدد کو نہیں آتا تھا۔ ان سب مشکلات کے باوجود میں نے ہار نہیں مانی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ راتیں میری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک حصہ تھی۔ میں اکثر نیند میں ڈر جاتی، ایک بھیانک خواب میرا پیچھا کرتا رہتا۔ میری بد نصیبی وہاں سے شروع ہوئی جب میں نے دنیا میں پہلی بار آنکھ کھولی۔ میری پیدائش کے وقت ہی میری ماں کی موت واقع ہو گئی۔ ان کے جسم کا خون اچانک ختم ہو گیا اور وہ مر گئیں۔ میں نے تو ابھی اس دنیا میں آنا ہی تھا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ لمحہ میرے والد کے لیے بھی انتہائی دردناک تھا۔ جب میں نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے خود کو ایک ہسپتال کے کمرے میں پایا جہاں گہما گہمی کا عالم تھا۔ ہر طرف سے ڈاکٹرز اور نرسیں بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ ہسپتال کا ماحول بہت مصروف اور پراضطراب تھا۔ نرسیں مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھیں، ڈاکٹر مختلف وارڈز میں مریضوں کی حالت دیکھ رہے تھے اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ماں کی حالت بگڑتی چلی گئی اور ان کے جسم کا خون تیزی سے ختم ہونے لگا۔
डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर सब बेसुध रहा। मेरे वालिद के चेहरे पर गम और बेबसी का आलम था। वो मेरी माँ की मौत को देखकर टूट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक नाकाबिले बयान दर्द था। मेरी माँ की जिंदगी खत्म होने के साथ ही मेरे वालिद की दुनिया भी उजड़ गई। इस अस्पताल के कमरे में जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, एक तरफ मेरी माँ का जिस्म बेजान पड़ा था और दूसरी तरफ मैं, एक नौमौलूद बच्ची जो अभी दुनिया में आई थी और अपनी माँ की मौत का सबब बन चुकी थी। मेरे वालिद ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और मेरी फुप्पो के सपुर्द कर दिया। मेरी फुप्पो ने मुझे अपनी गोद में लिया और मेरे वालिद के आंसुओं को देखते हुए खुद भी रो पड़ी। उन्होंने मेरे बाबा को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनके दिल में भी एक गहरा जख्म था। अस्पताल का माहौल बहुत अफसरदा हो चुका था। हर तरफ खामोशी और दुख का आलम था। मेरी माँ की मौत ने सबको सोगवार कर दिया था। मेरी फुप्पो ने मुझे अपनी गोद में लिया और मैं एक नौमौलूद बच्ची इस दुनिया की पहली सांस ले रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी पैदाइश ने कितनी जिंदगियों को बदल दिया है। मैंने तो अभी जिंदगी की शुरुआत ही की थी और मेरी माँ की मौत ने मेरे वालिद और मेरे रिश्तेदारों के दिलों में एक गहरा गम छोड़ दिया था। मेरी फुप्पो ने मुझे अपने सीने से लगाया और मैं उनकी आगोश में सुकून महसूस करने लगी। मैं एक नौमौलूद बच्ची थी जो इस दुनिया की मुश्किलात और तकालीफ से बेखबर थी। मेरी माँ की मौत ने मेरी जिंदगी की शुरुआत को एक दुख भरी दास्तान में बदल दिया था। मेरे वालिद ने मुझे अपनी फुप्पो के सपुर्द किया और खुद बेबसी से मेरी माँ के बेजान जिस्म को देखते रहे। अस्पताल का कमरा अब भी मसरूफ था, मगर सबके दिलों में एक गहरा सकून छा चुका था। मेरी माँ की मौत ने हमारे खानदान को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। मैंने दुनिया में आते ही अपनी माँ को खो दिया था और मेरी जिंदगी की शुरुआत एक गमगीन कहानी के साथ हुई थी। मेरी फुप्पो ने मुझे अपनी गोद में लिया और मैं उनकी आगोश में सुकून महसूस करने लगी। अस्पताल का माहौल, मेरी माँ की मौत और मेरे वालिद का दुख, ये सब मेरी जिंदगी की इब्तदाई कहानी बन गए थे। मेरे वालिद के लिए ये लम्हा इंतहाई तकलीफदेह था। उन्होंने मेरी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था और मेरे मुस्तकबिल की फिक्र उनके दिल में घर कर चुकी थी। उन्होंने मेरी फुप्पो से दरख्वास्त की कि वो मेरी परवरिश करे और मुझे अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम ना होने दे। मेरी फुप्पो ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और मुझे अपने सीने से लगाया। मेरी जिंदगी का ये आगाज मेरे लिए भयानक था। मैंने अपनी माँ की मोहब्बत को कभी महसूस नहीं किया और मेरी माँ ने भी मुझे कभी अपनी गोद में नहीं लिया। मेरी माँ की मौत ने मेरे दिल में एक खालीपन छोड़ दिया था जो कभी नहीं भर सका। अस्पताल का वो कमरा, मेरी माँ का बेजान जिस्म, मेरे वालिद का गमगीन चेहरा और मेरी फुप्पो की आगोश, ये सब मेरी जिंदगी के इब्तदाई लम्हात थे। मैंने दुनिया में आंख खोली और अपनी माँ को खो दिया। मेरी जिंदगी की शुरुआत ही दुख और गम से हुई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि आगे चलकर जिंदगी मुझ पर मेहरबान हो जाती। मैंने अपनी माँ की मोहब्बत को कभी महसूस नहीं किया और उनकी आगोश में कभी नहीं आई। मेरी माँ की मौत ने मेरी जिंदगी को एक गमगीनी में बदल दिया था। मेरी फुप्पो ने मेरी परवरिश की जिम्मेदारी ली और मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। ये सारी बातें मैं फुप्पो की जुबानी ही सुनती आई थी कि मेरी पैदाइश के वक्त उन्होंने क्या कुछ देखा था और मैं किस तरह इस दुनिया में आई थी। उनके अपने 3 बच्चे थे जो सब मुझसे बड़े थे। उनका आखिरी बेटा उस वक्त सिर्फ 4 साल का था और उससे बड़ी 2 बेटियां थीं। उनके शौहर की एक दुकान थी जो उनके रोजगार का जरिया थी। उनका घर एक दरमियानी साइज का था जिसमें 3 कमरे थे, एक छोटा सा सहन और एक बावर्ची खाने पर मुश्तमिल था। घर का माहौल मुख्तलिफ था। मेरे फुप्पो और फुप्पा अपने कामों में मसरूफ रहते। फुप्पो की ज्यादातर तवज्जो उनके अपने बच्चों पर होती थी और मैं अक्सर नज़रअंदाज की जाती। उनकी बड़ी बेटी जो मुझसे तकरीबन 8 साल बड़ी थी, अक्सर स्कूल जाती और छोटी बहन के साथ खेलती थी। उनका बेटा भी अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ रहता। मेरी फुप्पो अक्सर मुझे अपनी सास यानी बूढ़ी दादी के सामने छोड़कर चली जाती। दादी जो खुद भी उम्र रसीदा और कमज़ोर थी, मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती, मगर उनकी अपनी सेहत भी ठीक नहीं थी। उनके हाथों में कपकपाहट और कमज़ोरी थी और वो जल्द ही थक जाती थी। उन्होंने हमेशा मुझ पर शफकत का हाथ रखा, मगर उनकी जिस्मानी हालत उन्हें ज़्यादा देर तक मेरी देखभाल करने की इजाज़त नहीं देती थी। घर के इस कोने में बने छोटे से स्टोर नुमा कमरे में जहाँ दादी और मैं अक्सर अकेले होते थे, एक पुराना पंखा था जो गर्मी में बहुत कम सुकून फराहम करता था।
दादी मुझे खिलौने देने की कोशिश करती, मगर मैं उनकी हालत देखकर खुद को बोझ महसूस करने लगती। वो मुझे कहानियां सुनाने की कोशिश करती, मगर उनकी कमज़ोर आवाज़ जल्द ही थक जाती थी। अक्सर औकात जब वो थक कर सो जाती, मैं उनके पास बैठकर रोने लगती। मेरी फूफो की लापरवाही और दादी की कमज़ोरी ने मुझे एक दायमी बोझ का एहसास दिलाया था। फूफो जब अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ होती तो मैं एक कोने में बैठकर ये सब देखती रहती। उनके बच्चों को नए खिलौने मिलते, वो खेलते, हंसते और खुश रहते, मगर मैं हमेशा इन सब खुशियों से महरूम रही थी। फूफो ने कभी मेरे साथ वक्त गुजारने या मेरी ज़रूरियात को समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन जब मैं रोते हुए सो रही थी, दादी ने मुझे अपने सीने से लगाकर तसल्ली देने की कोशिश की। उनकी कमज़ोर आवाज़ में मोहब्बत का एहसास था, मगर उनकी अपनी सेहत उन्हें ज़्यादा देर तक ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं देती थी। वो मुझे कहती, बेटी सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मगर मेरे दिल में एक अजीब सी खलिश थी जो उनके अल्फाज भी मिटा नहीं सकते थे। मेरी ज़िंदगी के ये इब्तदाई साल बहुत तकलीफ से गुजरे थे। मैंने कभी अपनी माँ की मोहब्बत को महसूस नहीं किया था और फूफो की लापरवाही ने मुझे मज़ीद तन्हा कर दिया था। दादी की शफकत भी उनकी कमज़ोरी की वजह से महदूद थी। मैं अक्सर रातों को भूख और कमज़ोरी महसूस करते हुए रोते रोते सो जाती थी। हमारे घर के सहन में एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे मैं अक्सर बैठकर अपने माँ बाप की याद में आंसू बहाती। अक्सर मैं उस दरख्त के नीचे अकेली बैठकर खेलती रहती। पता ही न चलता कि कब खेलते खेलते मेरी आंख लग जाती और वहीं सो जाती। मैंने हमेशा उस पेड़ के नीचे बैठकर दुआ की कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशी आ जाए, मगर हर रोज़ वही लापरवाही और बेबसी का माहौल मेरी उम्मीदों को मिटा देता था। दादी जान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उनकी कमज़ोरी ने उन्हें बिस्तर पर महदूद कर दिया था। फूफो की मसरूफियत और लापरवाही ने मुझे मज़ीद तन्हा कर दिया। मैंने हमेशा अपने आप को एक बोझ महसूस किया जो किसी की ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकता था। मेरी ज़िंदगी के ये इब्तदाई साल बहुत दुख और तन्हाई में गुजरे थे। एक दिन जब मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की है कि अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे। उनके ये अल्फाज मेरे दिल में बस गए थे। मैं जानती थी कि मैं दादी के इन अल्फाज के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ। मेरे साथ दादी की ढेरों दुआएं थीं जो वो पल पल मुझे दिया करती थी, मगर उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी देखकर मैं और ज़्यादा टूट गई। मेरी फूफो की सास यानी मेरी दादी मेरे लिए एक छोटा सा सहारा थी, मगर उनकी कमज़ोर हालत ने उन्हें भी मेरे लिए मुकम्मल सहारा बनने नहीं दिया। उनके बच्चों को हमेशा नए कपड़े, नए खिलौने और अच्छी खुराक मिलती, मगर मैं इन सब चीज़ों से महरूम रहती। मैंने हमेशा अपने आप को इन सब से अलग महसूस किया था। मुझे इस एहसास की शिद्दत अब महसूस होने लगी थी कि मैं एक फालतू इंसान हूँ जिसकी कोई भी अहमियत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मेरी बात सुनता, जो मेरे दुख को समझता। मैंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल एक गमगीन और तन्हा माहौल में गुजारे थे। हर चीज़ से महरूम होकर मेरी दादी की मोहब्बत भी उनकी कमज़ोरी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी और फूफो की लापरवाही ने मुझे और ज़्यादा तन्हा कर दिया था। एक दिन जब मैं फूफो के बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, मेरी दादी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। तुम ये सब देखकर परेशान मत हुआ करो। देखना, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और तुम इन सब से ज़्यादा खुश रहा करोगी। उनके ये अल्फाज मेरे लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण थे, मगर उनकी अपनी हालत ने उन्हें भी ज़्यादा देर तक मेरे लिए सहारा नहीं बनने दिया था। वक्त के साथ साथ मैं बड़ी होने लगी और जब मैं 15 साल की हुई तो मुझे बहुत सी बातें समझ आने लगी, जिनमें सबसे पहले मेरी फूफो की चालाकियाँ थीं। मेरे वालिद कभी कभार हमसे मिलने आते थे, मगर मेरी फूफो कभी भी मुझे उनके करीब नहीं जाने देती थी। मैंने अक्सर कमरे की ओर से छुपकर देखा कि वो मेरे वालिद से मेरे नाम पर एक भारी रकम लेती थी। मेरे वालिद का कारोबार ऐसा था कि वो अक्सर शहर से बाहर रहते थे और जब भी आते तो सिर्फ 5 मिनट के लिए रुककर पैसे देकर चले जाते। मेरी फूफो बड़ी होशियारी से उन पैसों को अपने बच्चों पर खर्च करती। उनके बच्चे नए कपड़े और खिलौने लेते, अच्छी खुराक खाते, मगर मेरे हिस्से में सिर्फ लापरवाही आती। मुझे उस वक्त अपने वालिद के आने और जाने का सिर्फ एक धुंधला सा एहसास था।
मगर अब जब मैं बड़ी हो चुकी थी तो ये सब बातें साफ नजर आने लगी। मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी थी कि मेरे वालिद मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे, मगर वो सब मेरी फूफो की चालाकियों की नजर हो जाता था। दादी का इंतकाल जब मैं 8 साल की थी, वो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा धचका था। दादी मेरी जिंदगी में एक छोटा सा सहारा थी, मगर उनकी वफात के बाद मैंने खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस किया। दादी की यादें मेरे दिल में बसी रहती, उनकी कमजोर मगर मोहब्बत भरी आगोश, उनकी कहानियाँ, उनकी दुआएं, सब कुछ मेरे जहन में गूंजता रहता। दादी की मौत ने मेरी जिंदगी में एक और खला छोड़ दिया था जो कभी नहीं भर सका। 15 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी के उन तल्ख हक़ाइक़ को समझना शुरू किया। मेरी फूफो की चालाकियाँ, उनकी बेहिसी और मेरे वालिद की मेहनत सब मेरी आंखों के सामने वाज़े होने लगे। मेरे वालिद जब भी आते मैं कमरे की झरी से उन्हें देखती और दिल ही दिल में चाहती कि वो एक बार मेरी तरफ देखें, मगर फूफो की चालाकियों की वजह से ये कभी मुमकिन ना हो सका। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी और गम था। मेरी फूफो की बेहिसी ने मुझे और ज्यादा तन्हा कर दिया था। उनके बच्चों को हमेशा नई चीजें मिलती, वो खुश रहते थे, मगर मैं हमेशा उन खुशियों से महरूम रही थी। जब मेरे वालिद आते और मेरे लिए पैसे देते तो मैं कमरे की झरी से देखती और दिल ही दिल में दुआ करती कि वो एक बार मेरे पास आए, मुझसे बात करें, मगर ये कभी नहीं हुआ। मेरे वालिद को शायद कभी इस बात का इल्म नहीं हुआ कि मैं किस हाल में जी रही हूँ। उनका कारोबार ऐसा था कि वो अक्सर शहर से बाहर रहते थे और जब आते भी तो सिर्फ चंद मिनट के लिए। मेरी कफालत की रकम अदा करते और फिर वापस चले जाते। कभी कभार वो मुझे देखने की बात करते तो फूफो सिर्फ मुझे पानी लाने का कहती। मैं बाबा के सामने पानी रखती और बिल्कुल खामोश रहती। अगर मैं कुछ बोलने की कोशिश करती तो फूफो मुझे आंखें दिखाने लगती, इसीलिए अक्सर मैं खामोश ही रहती, क्योंकि मैं जानती थी कि बाबा मुझे यहाँ तन्हा छोड़ जाएंगे। आखिरकार मुझे उन्हीं लोगों के बीच उनके साथ रहना है। फिर आने वाला वक्त मेरे लिए मजीद आजमाइश बनकर आता, इसलिए मैं खामोश ही रहती थी। मैं जानती थी कि बाबा मुझे कभी भी घर नहीं ले जाएंगे। एक बार बातों बातों में फूफो ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के मरते ही दूसरी शादी कर ली। ये बात मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी, मगर मैं मजबूर थी और खामोश रही। मैंने तो कभी बाप की शफकत देखी ही नहीं थी, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं था कि उनका होना या ना होना मेरे लिए क्या एहसास रखता है। मगर फिर भी इस बात ने मुझे एक धचका जरूर दिया था। मेरी फूफो अक्सर मुझे ये एहसास दिलाने से बाज नहीं आती थी कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब भी मैं कोई काम करती या गलती से कुछ बिगाड़ देती, वो अपने तंज भरे अल्फाज से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें हमारे सर पर छोड़ दिया और खुद चल बसी। अगर मैं ना होती तो न जाने तुम्हारा क्या होता, वो अक्सर ये कहती थी। जब मैं थक कर बैठ जाती, उनके ये अल्फाज मेरे दिल को छलनी कर देती थी। कभी कभार जब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही होती और कुछ ठीक ना बनता, वो कहती, कितनी निकम्मी हो तुम, एक सीधा सा काम भी नहीं होता तुमसे। अगर हम तुम्हें ना संभालते तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदहाल होती। उनके तंजिया जुमले मेरे एतमाद को कमजोर करते और मुझे ये महसूस होता कि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती। जब उनके बच्चे वापस आते और मैं उनके लिए चाय बनाती तो वो कहती, देखो तुम्हारी हम उम्र की लड़कियां कहाँ पहुँच गई हैं और तुम यहाँ चाय बनाने में लगी हो। क्या ही अच्छा होता अगर तुम्हें किसी अच्छे घर में ब्याह दिया जाता, लेकिन कौन करेगा तुम्हें कबूल। उन्होंने मुझे हमेशा अनपढ़ ही रखा। मैंने जब भी स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो यही कहती कि पढ़ी लिखी लड़कियां मुंह फट होती हैं और बिन माँ की बच्चियों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। आगे चलकर वो अपने हक मांगने लगती हैं और उनके घर इस तरह नहीं बसते। तुम्हारी तो माँ भी नहीं है, कल कलां को तुम्हें ससुराल वालों ने निकाल दिया तो सारी उम्र के लिए हमारे मत्थे बांध दी जाओगी। एक दिन जब सब लोग दोपहर में सो रहे थे, मैं दरख्त के नीचे बैठी अपने वालिद के बारे में दिल ही दिल में शिकवा कर रही थी। क्या ही अच्छा होता अगर वो मुझे अपने साथ रखते और फूफो के रहमो करम पर ना छोड़ते। उनकी दौलत में कौन सी कमी आ जाती। मेरे दिल में ये सवालात गूंज रहे थे। मेरी आंखें नम थीं और मैं नीले आसमान को देख रही थी। आंखों से आंसू जारी थे और उनके कतरे मेरे गालों पर गिर रहे थे। दरख्त के नीचे का मंजर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मेरे दिल की हालत इस खूबसूरती से मेल नहीं खाती थी। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता सिरसरा रहे थे।
दूर कहीं परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन उनकी खुशियों की आवाज़ें मेरे दिल के दर्द को कम नहीं कर सकती थी। मैंने नीले आसमान की तरफ देखा, जैसे वहाँ किसी जवाब की तलाश में थी। आसमान पर बादल के चंद टुकड़े तैर रहे थे और सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। मेरी आंखें आसमान की वुसअत में खो गई थीं और दिल में शिकवा और शिकायत की लहर दौड़ रही थी। इसी दौरान मुझे यूं महसूस हुआ जैसे छत से कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है। किसी की आंखों की तपिश मुझे अपने वजूद पर महसूस हुई। मैं चौंक गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन वो तपिश अभी भी मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कोई गैर मरई आंखें मुझे घूर रही हों। अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसे देखकर मैं दंग रह गई। छत की दीवार पर एक नौजवान लड़का बैठा था, जिसकी आंखों का रंग गहरा सब्ज था। उसका लंबा चौड़ा वजूद और कवि हेकल जिस्म देखकर मैं हैरान रह गई कि ये लड़का हमारी दीवार पर क्या कर रहा है। मैंने फौरन उसके करीब जाकर उसकी जानिब चेहरा करके कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, मैं फूफो को बुला लूंगी, वो तुम्हारी खबर लेंगी। मेरी आवाज़ में हैरत और गुस्सा दोनों शामिल थे, लेकिन वो लड़का यकदुक मुझे घूरता रहा, जैसे मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी सब्ज आंखें गहरी और पुरस्कार थीं और वो बिना किसी हरकत के मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और खामोशी थी, जैसे उसे किसी चीज़ की कोई फिक्र ना हो। धूप की तेज किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके नकूश और भी नुमायां हो गए थे। उसके बाल हवा में हल्के हल्के सिरसिरा रहे थे और वो दीवार पर बैठा जैसे किसी सोच में गुम था। उसके लिबास में सादगी थी, लेकिन उसके वजूद में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। मैं परेशान और हैरान थी कि ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं फूफो को बुलाने का इरादा कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र ने मुझे रोक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और पुरस्कारियत थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन खामोशी इख्तियार किए हुए हो। मैं जैसे ही छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी, अचानक फूफो बाहर आई। मेरा दिल धक से रह गया, मेरे कदम वहीं रुक गए और मैं साकित हो गई। फूफो ने मुझे देखा और उनकी नज़रों में हैरत और सवालात थे। मैंने हिचकिचाते हुए अपनी नज़रें उठाई और उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका था। मेरे दिमाग में हैरत के बादल छा गए। इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। फूफो ने मुझे देखा और सख्त लहजे में पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मेरी जुबान पर अचानक ताले पड़ गए। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज मेरे गले में ही अटक गए। मैंने सर झुका लिया और फूफो के सवालात का जवाब ना दे सकी। वो कुछ देर तक मुझे घूरती रही, फिर सर हिलाते हुए अंदर चली गई। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और मेरी सांसें बेतरतीब थीं। रात के वक्त जब सब लोग सो चुके थे, मैं बिस्तर पर लेटी रही। मेरी आंखों के सामने वो सब्ज आंखों वाला लड़का बार बार आ रहा था। उसकी पुरस्कार मौजूदगी और उसकी नज़र का अंदाज, सब कुछ मेरे जहन में गूंज रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पानी पीने के लिए किचन का रुख किया। किचन में पहुंचकर मैंने पानी का ग्लास भरा और खिड़की से बाहर देखा। मेरी नज़र दरख्त के नीचे पड़ी, जहां वो लड़का दोबारा बैठा था। ये मंजर काफी डरा देने वाला और खौफनाक था। काले अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरी सांसें रुक गईं और ग्लास मेरे हाथ से छूटने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं चीखने ही वाली थी जब वो लड़का अचानक मेरे सामने आ गया। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं और दिल की धड़कन मज़ीद तेज हो गई। उसकी सब्ज आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। खामोश रहो, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो मुझसे कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम पैदा हुई हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा सारा वजूद लरसने लगा। मेरी आवाज़ कपकपाने लगी और मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं उससे कोई सवालात करना चाहती थी कि वो कौन है और रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन मेरी जुबान जैसे मुंजमद हो गई थी। मैं यहाँ आजकल से नहीं बल्कि कई साल से रिहाइश पजीर हूँ, उसने कहा। उसकी ये बात सुनकर मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं और मैं खौफ के मारे चुप खड़ी रही।
مجھے خیال آیا کہ اگر گھر میں سے کسی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو یقیناً مجھ پر تہمت اور الزامات لگائے جائیں گے کہ میرے اس لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، لیکن میں یہ سب کچھ اسے سمجھانے سے قاصر تھی۔ وہ دھیرے سے میرے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لمس نرم اور ہمدردی بھرا تھا، لیکن میں خوف اور حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا، میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں۔ یہ آج کل کی بات نہیں، ایک عرصے کی بات ہے، جب سے تم جوان ہوئی ہو۔ میں ہمیشہ تمہیں یوں ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری محبت اور جذبات کی چمک تھی۔ لیکن تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ یہ سن کر میری دھڑکنیں پھر سے تیز ہو گئیں۔ میں نے اپنی سانس روکی اور اس کی طرف دیکھا، جیسے یہ یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا، لیکن میری محبت تمہارے لیے حقیقی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے دل میں اس کے لیے جذبات کا ایک طوفان اٹھا، لیکن میں کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے اتنا خوبصورت محسوس کروایا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک پراسرار مخلوقات میں سے تھا جو مجھے دل دے بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی الفاظ ادا کرتی، گھر کی باہر والی لائٹ آن ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا کہ گھر میں سے کون اٹھا ہے تو پھپھو باہر آئیں اور کہنے لگیں، رات کے اس وقت تم صحن میں اس درخت کے نیچے کیا کر رہی ہو؟ کہیں ہم پر کوئی جادو ٹونا تو کروانے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ میرا دماغ الجھن کا شکار تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہاتھ اس نے تھام رکھے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ اس وقت خالی تھے اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک بار پھر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اچانک سے وہ جن ذات کہاں غائب ہو گیا۔ اب تو مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ وہ واقعی میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے جو اچانک ہی پلک جھپکتے غائب ہو جاتا ہے اور صرف مجھے ہی دکھائی دیتا ہے۔ پھپھو کے سوالات میرے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی اور دماغ میں وہ سبز آنکھوں والا لڑکا گردش کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میرے دل میں اس جن ذات کی خوبصورتی اور اس کی محبت بھرے الفاظ لہرانے لگے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے لمس کی گرمی ابھی بھی میرے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اس کی تصویر بس چکی تھی۔ وہ رات میرے لیے طویل اور پراسرار تھی، ہر لمحہ اس کے خیالوں میں گم تھا۔ صبح جب میں دیر تک سوتی رہی، مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پھپھو نے بھی مجھے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، جو صبح ہوتے ہی چلانے لگتی تھی۔ 10 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی۔ میں جلدی سے اٹھی اور باہر آئی، مگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے سارے کمروں میں جھانک کر دیکھا، لیکن گھر کے سارے ہی افراد نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں نے صحن کی صفائی شروع کی، پہلے جھاڑو اٹھایا اور سارا گھر صاف کرنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں گھر کی صفائی کرتی رہی۔ صفائی کے دوران میرے دماغ میں رات کی پراسرار واقعات گونجتے رہے۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا تھا جو کہنے لگا کہ یہ آپ کی پھپھو نے کچھ سامان دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس میں پھپھو کی شال اور کچھ سامان تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، جلدی سے ناشتہ تیار کر دیں، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے، سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ لڑکا ہسپتال سے آیا تھا اور کہنے لگا کہ آپ کے پھپھا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، سب لوگ ہسپتال میں ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھپھو نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور نہ ہی ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے پرہیزی کھانا، کھچڑی وغیرہ بنائی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں وہ ٹفن لے کر اس لڑکے کے ساتھ جانا چاہتی تھی تو اس نے مجھے منع کر دیا کہ ان کو مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا دل پریشانی اور اضطراب سے بھرا تھا۔ میں دل میں پھپھا جی کے لیے دعائیں کرنے لگی کہ اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ میں جائے نماز بچھا کر ان کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ دوپہر کے وقت میری پھپھو کی بیٹیاں شمائلہ اور شمیم واپس آئیں۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ بہت روئی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، سب ٹھیک ہے، مگر وہ مجھ پر چلانے لگی۔ شمائلہ نے غصے سے کہا، دور چلی جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے، تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ جو رات میں اٹھ کر تم ہم پر جادو ٹونے کرواتی ہو، یہ سب کچھ اسی کا اثر ہے
कि आज पापा को हार्ट अटैक हो गया है। तुम चाहती हो कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। एहसान मानने के बजाय उल्टा तुम हमारे ऊपर ही जादू करवाने लगी हो। शमीम ने भी तेज लहजे में कहा, अम्मी सच ही कहती हैं कि तुम हमारी आस्तीन का सांप हो। हम जितना मर्जी तुम्हें अपना कहें, लेकिन तुम कभी भी हमारी अपनी नहीं हो सकती। तुम्हें माँ बाप की कदर भला किस तरह से होगी? तुमने तो कभी उनका प्यार देखा ही नहीं है। उनकी सारी बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे अंदर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे अंदर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। फूफो की बेटियां अपनी बातें कहकर कमरे में चली गईं और मैं सहन में अकेली खड़ी रह गई। मेरे दिमाग में उलझन और परेशानी थी। मैंने कुछ देर के लिए बैठने का फैसला किया और अपनी हालत को संभालने की कोशिश की। मेरे दिल में बहुत से सवालात थे जिनका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दिन का बाकी वक्त भी इस्तराब और परेशानी में गुजरा। मैं बार बार फूफा जी की सेहत के बारे में सोचती रही और दिल में उनके लिए दुआएं करती रही। शाम को मैंने नमाज पढ़ने के बाद दोबारा दुआ की कि अल्लाह उनको सेहतयाबी अता करे और हमें इस मुसीबत से निकाले। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर थी। मैं बार बार उस जिन्सात की बातें और उसकी सब्ज आंखें याद करती। उसकी पुरस्कार मौजूदगी ने मेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। मैं सोचने लगी कि वो कौन था और क्यों मुझे अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो फूफो की बेटियां दोबारा खड़ी थीं। उनकी आंखें अभी भी बहुत सुर्ख थीं, जैसे वो बहुत रोई हों। शुमाइला ने कहा, हम अस्पताल जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? उनकी आवाज़ में एक नरमी थी जो मुझे हैरान कर गई। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और उनके साथ चल दी। रास्ते में मैं बार बार दुआ कर रही थी कि अल्लाह फूफा जी को सेहतयाबी अता करे। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि फूफो और ख़ानदान के बाकी अफराद भी वहां पर मौजूद थे। सबके चेहरों पर परेशानी और बेचैनी थी। फूफो ने मुझे देखा और पहली बार उनकी नज़रों में नरमी का अंसर था। वो मेरे पास आई और कहा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आया, जैसे पहली बार उन्होंने मुझे कबूल कर लिया हो। फूफा जी को आईसीयू में मुंतकिल किया गया था और डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी हालत नाजुक है, लेकिन वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। हम सब ने मिलकर दुआ की और एक दूसरे को तसल्ली दी। उस रात मैंने पहली बार फूफो और उनके ख़ानदान को एक मुख्तलिफ नज़र से देखा, जैसे हम सब एक ख़ानदान है। जब मैं अस्पताल पहुंची तो फूफो ने मुझे बड़े प्यार से बैठने का कहा। हम सब वहां मौजूद थे। फिर फूफो ने मुझे अकेले में एक कोने में ले जाकर फ़ोन मिला कर दिया और कहा, अपने बाप से कहो हमें 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, वो जल्दी से हमें 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दें। फूफो ने एक नंबर बताया कि पैसे इस नंबर पर भेजने हैं। मैं हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासुरात के साथ फूफो को घूरने लगी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं अपने वालिद से 5 लाख रुपए कैसे मांग सकती थी? आज तक मैंने अपनी जुबान से उनसे 50 रुपए भी नहीं मांगे थे, मगर उस वक्त मेरी फूफो पर बुरा वक्त था और मैंने बगैर सोचे समझे अपने वालिद से 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे पूछा, तुम्हें किसी ने दबाव डाला है? मैंने कहा नहीं, मैं खुद उनकी मदद करना चाहती हूँ। आखिर को सारी उम्र उन्होंने मुझे पाला पोसा है। अब उन पर मुसीबत की घड़ी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका साथ दूँ। थोड़ी ही देर बाद पैसे मिल गए। फूफो ने मुझे घर जाने का कहा और कहा कि घर का ख्याल रखो। मैं इन सब के साथ रुकना चाहती थी, मगर फूफो को ये गवारा नहीं था। आज रात मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मेरा दिल किसी खुश्क पत्ते की मानिंद लरस रहा था। मैं डर रही थी कि कहीं आज फिर से वो जिन्सात ना आ जाए। कल रात तो सबकी मौजूदगी में भी मैं खौफज़दा हो रही थी, मगर आज रात मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। हर आवाज़, हर साया, हर हिलती डुलती चीज़ मुझे खौफज़दा कर रही थी। दरख्त की शाखें जो हवा से हिल रही थीं, उनकी आवाज़ मुझे यूं लग रही थी जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो। सहन में खड़कने वाली हर चीज़ मुझे खौफज़दा कर रही थी। मेरी आंखों के सामने कल रात का मंजर बार बार आ रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं वो जिन्सात दोबारा ना आ जाए। मेरी सांसें तेज़ हो रही थी और दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। हर लम्हा मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो।
मैंने तमाम खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लिए थे, मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। रात का हर लम्हा खौफ और इज़्तिराब में गुजरा। मैं अपनी दुआओं में मसरूफ़ रही कि अल्लाह मुझे और मेरे घर को इस पुरस्कार मखलूक से महफूज रखे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी और हर आवाज़ मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। अभी मैं मुसल्ले पर बैठी ही थी कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरे हाथ कँपकँपाने लगे और मुझ में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि यहाँ पर कौन मौजूद है। मैं समझ गई थी कि ये वही जिन्सात है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मुझे घूर रहा था। उसकी सब्ज आंखें तारीकी में चमक रही थी। वो बोला, मुझसे डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। हाँ, अलबत्ता मैं बुरे वक्तों में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैंने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे क्यों डराने की बार बार कोशिश करते हो? ये कहते हुए मेरी आवाज़ लरज़ रही थी, मगर मैंने हिम्मत बांधकर उसे ये सब कुछ कह दिया। वो कमरे से फौरन बाहर निकल गया। मैं समझी कि वो शायद गुस्सा हो गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा। थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लजीज और खुशबूदार बिरयानी की प्लेट थी और एक ठंडे पानी का जग। उसने टेबल पर आकर रखा और कहा, तुमने सारा दिन परेशानी में कुछ नहीं खाया, आओ कुछ खा लो, वरना तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। यहाँ मेरे अलावा कोई भी तुम्हारा ख्याल रखने वाला नहीं है। उसका ये एहसास और मेरा ख्याल रखना मेरे दिल को उसके लिए नरम कर रहा था। थोड़ी देर की जिद के बाद आखिरकार मैं खाने पर रजामंद हो गई। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया तो यूं लगा जैसे मैं सदियों की भूखी हूँ। आज तक इतना लजीज खाना मैंने जिंदगी में चखा तक नहीं था और ना ही किसी ने मुझे इस तरफ कमरे में खाना ला कर दिया था। बिरयानी की खुशबू कमरे में फैल गई थी। हर नवाले के साथ मेरे दिल की धड़कनें कुछ नर्म हो रही थी। उसका यहाँ आना, मेरी भूख का ख्याल रखना और उसका अंदाज सब कुछ मेरे दिल को एक नए एहसास से भर रहा था। खाना खाते हुए मैंने महसूस किया कि ये जिन्सात मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि उसकी नीयत कुछ और थी। उसकी मोहब्बत और ख्याल रखना मेरे दिल को छू रहा था, मगर फिर भी मेरे दिमाग में सवालात उठ रहे थे। वो कौन था, क्यों आया था, और सबसे अहम बात, वो जिन्सात होते हुए भी क्यों मेरा ख्याल रख रहा था। मैंने जैसे ही खाना खत्म किया तो उस जिन्सात ने मेरे चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट देखी। वो बोला, देखा, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, शुक्रिया, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सब बहुत अजीब है। उसने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ, मगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, चाहे तुम मानो या ना मानो। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई और दर्द था। वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस हो या ना हो। मैंने उसे बगौर देखा। उसकी सब्ज आंखें एक गहरे दर्द और मोहब्बत की अक्कासी कर रही थी। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में मेरे लिए सच्चाई थी। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। कमरे में एक खामोशी छा गई थी। उस खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? वो चंद लम्हों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मगर तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया हूँ। मैं जिन्सात हूँ, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मोहब्बत? मैंने हैरत से दोहराया। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये आज की बात नहीं है, बल्कि एक अरसे की बात है। जब से तुम जवान हुई हो, मैं हमेशा तुम्हें दूर से देखता रहा हूँ। तुम्हारी हर खुशी, हर गम, सब कुछ मेरे दिल को छूता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? तुम तो इंसान नहीं हो। उसने नर्म लहजे में कहा, मोहब्बत इंसानों की हद तक महदूद नहीं है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हर मखलूक के दिल में हो सकता है। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है, मगर ये सच है। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। उसकी बातें मेरे दिल को छू रही थीं, मगर मेरे जहन में सवालात का एक अंबार था। फिर उसने मेरी आंखों से बाल हटाए और कहा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस हो या ना हो। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी मोहब्बत और सच्चाई ने मेरे दिल को नर्म कर दिया था। मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे मुमकिन है, मगर मैं तुम्हारी सच्चाई को महसूस कर रही हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा, बस यही काफ़ी है। रात का वक्त और भी गहरा हो चुका था।
उस जिनसात की मौजूदगी ने मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून बख्शा था। मैंने पहली बार अपने दिल में एक नई जज्बे को महसूस किया था। ये मोहब्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो इंसानी हदूद से बालातर थी। सारी रात मैं बहुत पुरसकून होकर सोती रही। न जाने ये कैसा एहसास था जिसने मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था कि कोई मेरा ख्याल रख रहा है और मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे दिल में जो एक खालीपन बचपन से रहा था, अब वो मुझे दूर होता दिखाई दे रहा था। मैं नहीं जानती थी कि ये सब कुछ क्या है। सुबह को 11 बजे मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी फूफो की बेटियां अंदर आईं। वो कहने लगी, हम जानते थे कि तुम्हें हमारे बाप की कोई फिक्र नहीं होगी और तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रही होगी। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी वजाहत का उन पर कोई असर नहीं होने वाला। वो दोनों अंदर आईं, अपनी चादरें और बैग रखकर मुझे नाश्ता बनाने का कहकर खुद अंदर चली गईं। उनका इरादा कुछ देर आराम करने का था। शायद वो रात भर जागती रही थी। मैं उनसे अभी सवाल करने ही वाली थी कि फूफा जी का ऑपरेशन हो गया, मगर वो मेरे सवाल तक रुकी ही नहीं। मुझे नज़रअंदाज करती हुई चली गई। मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। बावर्ची खाने में खिड़की से बाहर नजर आते दरख्त और परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। मेरे दिल में एक नई उम्मीद की किरण थी। कल रात का वो जिनसात, उसकी बातें, उसकी मोहब्बत, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहा था। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली। आज मैं बेहद खुश थी। जो रात मैंने गुजारी थी, ऐसी रात मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं गुजारी थी। नाश्ता बनाकर मैंने अपने लिए एक प्लेट में निकाला। हमेशा मैं बचा कुचा ही खाती थी, मगर आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैं अहमियत के काबिल हूँ। किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया था कि मैं अहम हूँ। मैंने नाश्ते की तैयारियां मुकम्मल की और प्लेट में नाश्ता निकालकर मेज पर रखा। मैंने एक नज़र बावर्ची खाने की खिड़की से बाहर डाली। आसमान नीला था और सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों पर पड़ रही थी। ये सब कुछ मेरे लिए एक नया था, या इससे पहले मैंने कभी इन्हें गौर से देखा ही नहीं था। मुझे हर चीज़ ही खूबसूरत महसूस होने लगी। मुझ पर किसी की बुरी बातों का असर नहीं हो रहा था। नाश्ता करते हुए मेरे दिल में सुकून और इत्मीनान का एहसास था। मैंने अपने दिल की धड़कनें महसूस की। ये मोहब्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो इंसानी हदूद से बालातर थी। इतने में फूफो की बेटियां बाहर आईं। वो अब भी गुस्से में थी, मगर मैंने उन्हें नाश्ता करने के लिए बिठाया। वो कुछ ना बोली, बस खामोशी से खाने लगी। फूफो की बड़ी बेटी शुमाइला ने अचानक कहा, हमारे बाप की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन हो चुका है, मगर अभी भी खतरा है। मैंने दुआ की, अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे, मगर उन्होंने कुछ न कहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शुमाइला बोली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तुम्हें तो सिर्फ अपने आराम की फिक्र है। मैंने कहा, ऐसी बात तो नहीं है, मैं वाकई फिक्रमंद हूँ, मगर फूफो ने मुझे कुछ बताया नहीं था। शमीम ने मजीद कहा, हमारी अम्मी ठीक कहती हैं, तुम हमारे लिए कभी अपनों जैसी नहीं हो सकती। मैंने खामोशी से नाश्ता जारी रखा। उनके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में चुभ रहे थे। मैंने हमेशा उनके लिए दिल से काम किया था, मगर वो मुझे कभी अपना नहीं समझती थी। जब फूफा की तबीयत ठीक हुई और वो घर आए तो मैंने एक दिन उस जिनसात से कहा वो अपने वालिदैन के साथ मेरा रिश्ता लेकर आए, और उसने ऐसा ही किया। खुद को बहुत अमीर कबीर जाहिर करके वो मेरे वालिद का जानने वाला बता के मेरा रिश्ता लेकर आया। खुदा का शुक्र था कि फूफो को इस रिश्ते पर कोई भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैंने उनके शौहर की जान बचाई थी। मेरे वालिद साहब इन दिनों मुल्क से बाहर थे। मैंने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया, जिस पर उनको भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उनके लिए मेरी ज़ात कोई अहमियत नहीं रखती थी, और अब तो इस जिम्मेदारी से भी वो सुबकदोश हो चुके थे। यूं मेरा रिश्ता सलमान के साथ तय हुआ। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। उसने एक बहुत ही खूबसूरत और इस शहर का सबसे महंगा बंगला मेरे लिए खरीदा। मैं उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी बसर कर रही हूँ। अक्सर फूफो और उसकी बेटियां भी मुझसे मिलने चली आती हैं। हम सब लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं उस जिनसात के साथ बेहद खुश हूँ जो अब एक इंसानी रूप में मेरे साथ जिंदगी गुजार रहा है। मेरी फूफो की बेटियां मेरे खूबसूरत शौहर पर हमेशा रश करती हैं, और मेरी किस्मत पर भी, जो कभी मेरी किस्मत को कोसने देती थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।